ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ changes does not always mean seriousness and I hope and we wish ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, but it does not always mean like that. Let's call spade a spade। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, these are very dangerous conspirations, ਇਹ ਬੜੀਆਂ dangerous conspiracies ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਸਮਵਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ, ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਈਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਜਸਟਿਸ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਬ ਜਸਟਿਸ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਕੇਸ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟੂਟਿਵਲੀ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲਾਇਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ। ਤਗੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਨੇ ਆ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੇਸ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਪਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। IAS, IPS, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਰਟਨ NGO, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ, ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਗੋਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲੀ ਉਹ 2-3 ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਤਾ, ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੈਲਥ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਟੂਵਰਡਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਵੈਰੀ ਥੌਟ ਆਊਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਸਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਵੇ, ਰਾਈਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ। ओपोजिशन की भी कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले ओपोज ही करी जाओ, दैट इज नॉट व्हाट ओपोजिशन इज फॉर। सवाल ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। जी सर, भारत की इकोनॉमी की बात होती है तो 2023 अच्छा साल माना जा रहा है, पर साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि महंगाई उसी दर से बढ़ती रहेगी। देखो 2023 अच्छा साल माना जा रहा है कंपैरिजन में। पूरी दुनिया में जिस तरह के संकट छाए हुए हैं, चाइना, मैं कहता हूँ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संकट बना हुआ है। जो उन्होंने पहले एक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, अगर वो टाइमली कोविड के सोर्सेस बताते और टाइमली दुनिया में इन्फॉर्म करते, इससे पहले कि उनके सब लोग पूरे दुनिया में चले गए, तो दुनिया एक बहुत बड़ी, मतलब चाइना ने कितने करोड़ लोगों को गरीबी की तरफ, भूखमरी की तरफ धकेला है, ये सब दुनिया अब जान चुकी है, और चाइना को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जरूरत है। दूसरा, यूक्रेन वॉर के कारण सप्लाई चेन्स पे बहुत इंपैक्ट है, और जिसका महंगाई पे पूरी दुनिया पे असर हुआ हुआ। फॉर्चुनेटली मैं आपको एक डाटा देता हूं कि इंडिया का दुनिया में सबसे बड़ा एरेबल लैंड है, इसलिए हम फूड पे बाहर पे डिपेंडेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सम ऑयल्स के अलावा ज्यादातर चीजें हम अपनी सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे खाने की महंगाई उस लेवल पे नहीं बढ़ी। महंगाई बढ़ी है, पर जब पूरी दुनिया में अगर सप्लाई डिमांड पे असर आएगा तो उसका कुछ ना कुछ असर हमें भी पे करना पड़ेगा। दूसरी, बिकॉज ऑफ आर लोकल डिमांड, बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, और जो नई प्रोडक्शन लिंक पॉलिसीज आई हैं, इंसेंटिव प्लान आए हैं, उससे इंडिया में इंडस्ट्री आ रही है, उससे इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है। तो जो अगर मैं 8-10 मेजर एजेंसी के एस्टिमेट देखूं 2023 के, जो ऑन एन एवरेज 6.8 to 7% के बीच में है, तो हम मान के चलेंगे रफली 7% पे भारत ग्रो करेगा। इन्फ्लेशन रिलेटिवली अंडर कंट्रोल है, तो ये जो ग्रोथ होती है ये रियल टर्म्स में होती है। इसका मतलब ये है कि जो 7% ग्रोथ दिखाई जा रही है, ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दिखाई जा रही है। एक्चुअल में इंडिया 15% नॉमिनल टर्म्स में ग्रो कर रहा है, पर रियल टर्म्स में, मतलब उसमें से इन्फ्लेशन निकाल दी जाए तो सिर्फ 7% पे ग्रो कर रहा है। तो इन्फ्लेशन है, पर ग्रोथ उससे ऊपर है। ये जो ग्रोथ है ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही कैलकुलेट की जाती है, और होपफुली ये जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो अपनी प्रोग्रेस के हार्डवेयर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, और जो ग्लोबल टाइप्स कर रहे हैं, और हम जो अपनी एनर्जी नीड्स को रशिया की से ऑयल परचेज करके जो हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, होपफुली हम अपनी देश की गरीब जनता को महंगाई की मार से बचा के रख पाएंगे। तो आम लोगों की जेब पर कोई एक्स्ट्रा भार नहीं आएगा? नहीं, एक्स्ट्रा भार है, हमें इसमें और मेहनत करने की, मैं ये नहीं कह रहा एक्स्ट्रा भार नहीं आएगा, भार आ रहा है। देखो, आप जब ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट हो तो आपके ऊपर असर आना ही है। ऑयल तो महंगा हुई है, ऑयल पिछले 2 साल में डबल हुआ है, तो हमारा मेजर इंपोर्टेबल क्या है? ऑयल। जब वो डबल हुआ उसका कॉस्ट आएगा, तो हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर ज्यादा फोकस करने के लिए, नेचुरल गैस पे करने की जरूरत है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, और एट द सेम टाइम
हमारे को अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। फिर एक तो सप्लाई तरफ से ये महंगाई बन रही है, दूसरा खाने की चीजों में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हमने आगे भी एक शो में डिस्कस किया था कि हमारी जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो काफी लो है, और जो पेस्टिसाइड और यूरिया यूसेज है वो काफी इनएफिशिएंट है अगर आप कनाडा जैसे देश से कंपेयर करें या किसी और डेवलप कंट्री से। तो हम अपने फूड में पॉइजन कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं विद बेटर रिसर्च। नेचुरल जो इस बार के भाषण में 15 अगस्त के भाषण में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, हमें नेचुरल प्रोडक्शन की तरह, उससे लोग बीमार कम होंगे। जब बीमार होता है वो भी तो एक खर्चा है, वो भी उनकी जेब पे भारी पड़ता है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। तो ओवरऑल धीरे धीरे आपको सारे सेट पीसेस करके देश को इनकम इतनी बढ़ाओ कि महंगाई हमारे आम आदमी पे असर, जब मीडियम इनकम बढ़ेगी, जब हम अपनी पर कैपिटा इनकम को $5,000 तक ले जा पाएंगे। और अभी इन्फ्लेशन और ग्रोथ का रफली 7% का डिफरेंस है। ये जो ग्रोथ है ये रियल टर्म्स में गिनी जाती है। जी, एक और खबर आई सर देश की कैपिटल से। दिल्ली में मेयर का चुनाव था, मेयर को चुनना था। पार्षदों में आपस में बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ कुर्सियाँ भी चली, एक दूसरे को धक्के भी दिए। जो बहुत पहले देखने को मिलता था वो आज भी देखने को मिला। देखो, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स बेस्ट लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है। कुछ अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करती है जो सेक्रीफाइस, पर ज्यादातर लोग जो पावर हंग्री होते हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, पावर हमेशा उन लोगों को अट्रैक्ट करेगी। और ये वो दिखाता है, ये उस रियलिटी को दिखाता है कैसे आज जब इतना एक्सपोजर है, उनको पता है वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पब्लिक में शेम होगी, पर हमारे नेता इस तरह के हैं कि उनका उनके अंदर ऐसी एग्रेशन है, ऐसी पावर हंग्रीनेस है कि वो बातचीत से बात को सॉर्ट नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूं कि आज अगर सड़क पे हाथापाई होती है किसी आम आदमी की तो उसको जेल में भेजा जाता है। जो पार्षद वीडियो में, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस वाले बाई चांस एब्सेंट थे जी, जो भी हो, उनके ऊपर भी वही पब्लिक न्यूसेंस के केस बनाए जाए और उनको जेल भेजा जाए और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और दोबारा इलेक्शन हो। आप देखिए क्या एग्जाम्पल सेट होता है। क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने को तैयार है? क्या अपने नेताओं पे ये सख्ती करने को तैयार है? अगर वो नहीं तैयार है तो फिर आम जनता से वो अच्छे बिहेवियर की उम्मीद रखना छोड़ दें। बिल्कुल सर, चाइना और तालिबान का एक प्रोजेक्ट एक साथ आ रहा है, तो क्या उम्मीद है उससे? क्या होगा? दुनिया में क्या बदलाव आएगा उस प्रोजेक्ट से? आपने जाने अनजाने में ना बड़ा एग्जैक्ट वर्ड यूज किया, चाइना और तालिबान, क्योंकि ये अफगानिस्तान की जनता के साथ टाई अप नहीं है। आज वहां पे वॉरलोड्स हैं जो पैसे के लिए चाइना के हाथों बिक रखे हैं और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम रेट पे चाइना को हैंड ओवर करते जा रहे हैं। और चाइना का हमेशा से यही प्लान रहा है। देखिए, आज जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें अफगानिस्तान रिच है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं $1 ट्रिलियन वहां पे एक कॉपर माइंस वो दिए जा रहे हैं, ऑयल फील्ड्स दिए जा रहे हैं। अब बेसिकली 1 ट्रिलियन का जो एस्टिमेट है वो बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। एक एस्टिमेट ये कहता है कि वहां पे $2.1 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होगा कि चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मैं इसको चाइना के लोग भी नहीं बोलूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड जी जिनपिंग उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। और अफगानिस्तान के लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ करप्ट तालिबान लीडर उसमें से पैसा खाएंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे टाइप्स ये पहले से करते आ रहे हैं। आज इस तरह के निफेरियस इरादे जो चाइना के रहे हैं कभी भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुए। ये अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं। वहां पे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 4 मेजर फैक्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम तालिबान, जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाह रही है। उसमें नॉर्दर्न अलायंस भी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले भी हैं, तो कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो पूरे वहां पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और किसी का भी ग्राउंड लेवल पे चाइना के लोग अपने इंजीनियर्स को नहीं बचा पा रहे। तालिबान के रूल के बाद कई चाइनीज इंजीनियर्स को वहां पे गोली मार दी गई, क्योंकि लोकल नेता, लोकल वॉरलॉर्ड ये समझ रहे हैं कि ये हमें एक्सप्लॉइट करने आए हुए हैं। तो ये डिसीजन तो होते रहते हैं और इस डिसीजन में ये कि पहले 3 साल तक एक्सप्लोरेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। पर मेरे को डाउट है कि जो काम रशिया, अमेरिका नहीं कर पाए, चाइना कर पाएगा। तो इंडिया को अफगानिस्तान के लोग अपना एक दोस्त नेशन समझते हैं। इंडिया ने वहां पे हमेशा ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड की है, हर टाइम पे उनके काम मदद की है। तो मेरे को ये लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 हफ्ते में या 2-3 महीने में तालिबान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए। और
एक जब तक आप अफगानिस्तान का हित नहीं सोचोगे, अफगानिस्तान के लोगों को साथ में लेके नहीं चलोगे, जी। तब तक आप उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। तो चाइना प्लान तो बनाता है, और बड़े देशों में इन्होंने किया है। जहां जहां पे भी ट्रबल है, चाइना का एक हमेशा एक मेथोडोलॉजी रही है, उनकी एक पॉलिसी रही है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। जहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, जहां पे चीजें वो सस्ते में खरीद सकते हैं, उस देश के लोगों का नुकसान करके अपना बेनिफिट कर सकते हैं, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। पर फॉर्चुनेटली कहीं पे भी वो अपने लिए बेनिफिट नहीं ले पाए, बिल्कुल, कहीं पे भी उनको रिटर्न्स नहीं मिले। एट द एंड ऑफ द डे वो सब्सिडी बेस्ड अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट करके, जो गांव से लोगों को उठाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े रूम में कई 100 लोग बिठा दिए, उनको एक्सप्लॉइट किया और सस्ता सामान बना के वो बेच पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई मेजर अचीवमेंट नहीं की। सर, रशिया यूक्रेन की वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही, पर सीज फायर अनाउंस हुआ है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इससे वॉर रुकने की उम्मीद की जाए? देखो, सीज फायर और वॉर, मैं वॉर रुकने की उम्मीद तो रखता हूं, क्योंकि कुछ ग्लोबल चेंजेस हुए, जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। जो सीज फायर हुआ है वो रशिया की तरफ से यूनिलेटरली डिसाइड हुआ है जी। अब रशिया ने बहुत सोच समझ के ये सीज फायर दिया है। हालांकि उन्होंने बोला तो ये है कि भाई ये सीज फायर है, इसमें विंडो है, जो सिविलियंस हैं वो वॉर जोन से निकल जाएं, और इस तरह के सीज फायर अनाउंस होते हैं। ये यूएन के अंदर पॉलिसी है ड्यूरिंग वॉर कि आपको सिविलियंस को निकलने का टाइम और मौका देना है। हालांकि ऑन ग्राउंड, जैसा कि काफी हद तक एक्सपेक्टेड ही था, फिर भी आर्टिलरी फायर की आवाजें सुनाई दे रही हैं वहां पे। अब इसके दूसरा रीजन जिसके कारण रशिया ने ये जो सीज फायर अनाउंस की है, एक आप आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, हम जनरली क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, पर जो ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न क्रिसमस होता है वो 7 जनवरी को है जी। तो वहां पे काफी लोग जो ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न क्रिश्चियंस हैं वो इस दिन अपनी क्रिसमस मनाते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रख के रशिया ने ये सीज फायर दिया है। बट एट द सेम टाइम यूएसए ने टिपिकली इसको बड़े ही सिनिकल तरीके से देखा है। उनका ये मानना है कि रशिया अपनी ट्रूप्स को, पावर्स को रीलाइन करेगा और उसके बाद ज्यादा फोर्स के साथ अटैक करेगा। तो बट दूसरी बात आपने बोली थी क्या वॉर रुकेगी, ये सीज फायर 36 घंटे का इसका टाइम फ्रेम था। अब इसके बाद वॉर दोबारा रिज्यूम होगी, पर मेरे को ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली जब से इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है, और G20 दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है आउटसाइड द यूएन, बिकॉज 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, टॉप इकोनॉमीज आर देयर। तो मतलब 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इज पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज। तो रशिया और यूक्रेन, ज़ेलेंस्की की भी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, these two countries know that ultimately war will slow them down in the long run। वो उनके दुश्मनों को स्ट्रॉन्ग करेगी, एंड दे ट्रस्ट इंडिया टू बी फेयर एंड बी जेन्युइन अबाउट कि भाई हमने ये इस लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है जिसमें इतनी जान और माल की हानि हो रही है। यूक्रेन तो बल्कि बुरी तरह से बर्बाद हो रखा है, अब उसको कई दशक लगेंगे वापस उभरने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया शुड एज ए G20 प्रेसिडेंट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और रशियन प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट अगर वो फेस टू फेस सीधी डिस्कशन करेंगे, दैट इज द ओनली वे। जब तक नेटो और अमेरिका उनको वेपन्स देता रहेगा और ज़ेलेंस्की यही बोलते रहेंगे कि मैं उन वेपन्स के साथ एंड तक लड़ता रहूंगा, तब तक इस वॉर का सोल्यूशन नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरह की मीनिंगफुल डिस्कशंस के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद ऑन पंजाब टुडे।